Good morning, students. In our previous lecture, we discussed about gas laws and ideal gas equation, and today in continuation with that, we are going to practice numericals based on gas laws and ideal gas equation. So, firstly just discussed about the formula which are used in gas laws and ideal gas equation. So, our first law is Boyle's law. We know that in Boyle's law, temperature remain constant and pressure is inversely proportional to volume. So, PV remain constant and that constant is named as Boyle's constant. And under different conditions, P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature. The next is second is Charles law. Charles law में when pressure remain constant then volume is directly proportional to temperature, and according to that V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. Now our third law is Gay-Lussac law of gaseous volume. Gay-Lussac law of gaseous volume says that at constant volume pressure is directly proportional to temperature, which means that P1 by T1 is equal to P2 by T2. Now fourth is Avogadro's law. Avogadro's law says that under same condition of temperature and pressure, number of moles of a gas is directly proportional to the volume occupied by the gaseous moles. So V1 by N1 is equal to V2 by N2. Okay? These are various gas laws, and by combining all the gas laws, ideal gas equation obtained is PV is equal to nRT, where N is number of moles, R gas constant, P pressure, V volume, and T temperature in Kelvin. So, by taking number of moles and gas constant as a constant value, PV divided by T, that become constant. अगर PB by T constant value है, so under different conditions we can say that P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. And in terms of density, when we calculate the density from ideal gas equation, we know that number of moles is equal to given mass by molecular mass. तो mass by volume is density, तो volume हम इस साइड लेके आएंगे, तो density की वैल्यू क्या आती है यहाँ से? Pressure into molecular mass of gas divided by RT. Or we can also calculate molecular mass of a gas, that is dRT by P. And under different conditions, the comparison of density, it become D1 by D2 is equal to P1 by T1 into T2 by P2. Similarly, जब हम molecular mass को compare करेंगे of two different gases, ठीक है, तो वहां से वैल्यू आएगी M1 P1 is equal to M2 P2. Is it clear? ये सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. Now let's start numericals बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूलाज. ठीक है, आपके जो 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल हैं, दे आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स. ठीक है, आपको वैल्यू गिवन होगी लाइक जो क्वांटिटी है, लाइक इन द फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. 4 डिफरेंट क्वांटिटी है: इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम. तो आउट ऑफ 4 क्वांटिटीज 3 क्वांटिटी गिवन होगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्थ वन. इसी टाइप से सारे फॉर्मूले आपके यूज्ड होंगे. नाउ our first numerical is a balloon is filled with hydrogen at room temperature. ठीक है, जब हम बैलून को हाइड्रोजन गैस के साथ फिल करेंगे एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार. ठीक है, अगर प्रेशर 0.2 बार से ज़्यादा होगा देन द बैलून विल बर्स्ट. इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम. ठीक है, 1 बार प्रेशर पे अगर गैस का वॉल्यूम 2.27 लीटर है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड? हम किस वॉल्यूम तक बैलून को एक्सपेंड कर सकते हैं? सो लुक एट दिस न्यूमेरिकल. इन दिस न्यूमेरिकल प्रेशर P1 is 1 bar and at pressure P1 volume 2.27 लीटर. और यहाँ पे कि इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सिड 0.2 बार. अगर प्रेशर 1 बार से 0.2 बार में कन्वर्ट होगा देन द बैलून बर्स्ट. तो इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर आपका क्या हुआ? इट बिकम 0.2
2 bar. So up to what volume कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड, हम किस वॉल्यूम तक बैलून को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब जहां तक उसका जो, जब हम प्रेशर को एक्सीड कर रहे हैं अप टू 2.5 बार, तो उस प्रेशर के बाद फर्दर बैलून ब्रस्ट हो जाएगा, तो 0.2 बार पे जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, उस वॉल्यूम तक हम बैलून को एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर उससे ज्यादा फर्दर वॉल्यूम आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा हाई वॉल्यूम पे फर्दर बैलून ब्रस्ट हो जाएगा. तो यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम एट प्रेशर 0.2 बार. वी नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो हम प्रेशर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा. यहाँ पे प्रेशर बेसिकली डिक्रीज हुआ है आपका 1 बार टू 0.2 बार. प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, तो बैलून वी कैन एक्सपेंड द बैलून when up to pressure 0.2 bar. So look at here, temperature remain constant because in the first line balloon is filled with hydrogen at room temperature. टेम्परेचर की यूनिट, टेम्परेचर की कंडीशंस आपकी कांस्टेंट है. सो अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. यहाँ पे आपको इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम गिवन है. इनिशियल प्रेशर इज 1 बार, इनिशियल वॉल्यूम 2.27 liter, final pressure 0.2 bar, and you have to calculate final volume. तो value of final volume, इसको जब आप solve करोगे then it become 11.35 liter. ठीक है, so we can say that the volume can be expanded up to 11.35 liter, and above this volume the balloon will burst. Is it clear? Simply numerical है. Initial pressure volume given था, final pressure given है, and you have to calculate the final volume. Now our next numerical is a gas occupy a volume of 2.5 liter at 9 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. ठीक है, अगर गैस का वॉल्यूम 2.5 लीटर है एट प्रेशर 9 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. Calculate the additional pressure required to decrease the volume of gas to 1.5 liter, keeping the temperature constant. ठीक है, आपको इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है, हमें कितना एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड है ताकि जो वॉल्यूम है गैस के वो 2.5 से 1.5 लीटर में डिक्रीज हो जाए. व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो आपका वही सेम फॉर्मूला होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. सो हियर इनिशियल प्रेशर इज 9 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. At initial pressure, initial volume 2.5 liter. Final pressure you have to calculate and volume 1.5 liter. Now put the value of P1 V1 and P2. ठीक है, by putting the value of P1 V1 and V2 we can calculate P2. तो यहाँ से फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, P1 into V1 divided by V2, that is 1.5 liter. And after doing the calculation, final pressure become 15 into 10 raised to power 6 Newton per meter square. ठीक है, फाइनल प्रेशर अब आपका इतना आया. देखिए इनिशियल प्रेशर था 9 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ व्हेन प्रेशर बिकम 15 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. Now you have to calculate what additional pressure is required. तो additional pressure कितना रिक्वायर्ड हुआ आपका, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, that is 15 into 10 raised to power 6 minus 9 into 10 raised to power 5 Newton per meter square, which become 6 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. Sorry, here power is 10 raised to power 5, not 6. Now next is, at what temperature centigrade will the volume of a gas at 0 degree Celsius double itself, pressure remaining constant. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि किस टेम्परेचर पे
ठीक है, जो वॉल्यूम है गैस की एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ व्हेन प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, डेट इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अंडर डिफरेंट कंडीशन V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा बिकॉज प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। सो V1 इज, हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, यहाँ पे है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है एट व्हाट, यहाँ पे अब गिवन है एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था वो कितने टेम्परेचर पे डबल हो जाएगा। तो लेट्स कंसिडर दैट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस इज V मिलीलीटर। तो V2 कितना आया, अगर इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे VmL था तो फाइनल वॉल्यूम इट बिकम 2V एंड यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। सो फर्स्टली कन्वर्टेड डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल में चाहे टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, बट इस फॉर्मूले में हम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, T1, V2, we can easily calculate the value of T2. So by solving this equation, here T2 become 546 Kelvin, and in degree Celsius scale temperature is 546 minus 273, that is 273 degree Celsius. Is it clear? Now next is an open vessel contain 200 mg of air at 17 degree Celsius. What weight percent of air would be expelled if the vessel is heated to 117 degree Celsius? ठीक है, जो ओपन वेसल है वो 200 mg ऑफ एयर कंटेन करता है टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ एयर would be expelled if the vessel is heated to 117 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर की कंडीशन गिवन है और आपको वेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। बट अब ये ध्यान रखना कि हमारे पास मास और टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वी हैव रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम मास से वॉल्यूम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर दैट volume of 200 mg of air is V मिलीलीटर। ठीक है, 200 mg एयर का वॉल्यूम अगर V मिलीलीटर है, देन व्हेन वी अप्लाइंग द रिलेशन V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, V1 VmL, T1 आपका है 17 डिग्री सेल्सियस। So convert 17 degree Celsius into Kelvin first by adding 273. V2 हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ। ठीक है, जितना भी वॉल्यूम हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज होगा, डेट मीन्स उतना ही जो मास है एयर का मास उसके कोरस्पॉन्डिंग ही एक्सपेल्ड होगा। गैस पार्टिकल्स उस वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग ही एक्सपेल्ड होंगे, तो हम मास को वॉल्यूम के कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन 117 प्लस 273 केल्विन। सो फ्रॉम हेयर V2 बिकम दैट इज 117 प्लस 273 390 केल्विन। V डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 290। तो इसको सोल्व करेंगे, V2 बिकम 1.34 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम इफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज VmL, तो एट हायर टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम जो गैसेज है, गैसेज एक्सपेंड हुई अप टू 1.34 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड
कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ एयर का, that become 1.34 minus original volume, that is considered as V. So volume of air expelled is 0.34 volume. ठीक है. Now you have to calculate weight percentage. weight percentage के लिए अब हम given volume से mass percentage calculate कर लेंगे. We know that अब यहाँ पे हमने consider किया था कि जो mass है 200 मिलीग्राम का जो वॉल्यूम है डेट इज VmL. तो यहाँ पे हमने फाइनल वॉल्यूम ही कैलकुलेट किया, हमने गैस को तो चेंज नहीं किया ना, अमाउंट तो चेंज नहीं की. तो 1.34 जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम का मास भी सेम रहेगा. सो मास ऑफ 1.34 वॉल्यूम एयर इट इज 200 mg. ठीक है. तो एक्सपेल्ड एयर का कितना मास हुआ, मतलब कितना मास एक्सपेल्ड हुआ, आपको वो कैलकुलेट करना है. एक्सपेल्ड एयर इज 0.34. तो मास ऑफ 0.34 एयर इट बिकम 200 डिवाइडेड बाय 1.34 इंटू 0.34 मिलीग्राम. नाउ फॉर परसेंटेज के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्सपेल्ड एयर का मास है डिवाइडेड बाय total mass into 100. mass of expelled air is 200 divided by 1.34 into 0.34 divided by total mass 200 multiplied by 100. ठीक है. सो जो परसेंटेज आ जाएगी, वैल्यू ऑफ परसेंटेज इट बिकम 25.37%. इज इट क्लियर? Next is at 0 degree Celsius, the density of a gaseous oxide at 2 bar is same as that of nitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? And now in this numerical, density of a gaseous oxide at 2 bar is same as that of nitrogen. Density का relation, और हमें पता है कि हम density किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. We can calculate density from ideal gas equation. ठीक है. तो what is the value of density from ideal gas equation? It is D is equal to mp divided by RT, where m is the molecular mass of the gas, p pressure, r gas constant, and T is the temperature taken in Kelvin. So now here you have to calculate molecular mass of oxide. तब यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास. अब इस फॉर्मूले में 2 डिफरेंट गैसेज हैं. एक की जो डेंसिटी है वो दूसरे के बिल्कुल सेम है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मतलब यहाँ पे डेंसिटी भी सेम है एंड टेम्परेचर सेम है. ठीक है. तो सेम डेंसिटी और सेम टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू ही होगी. आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास. ठीक है. प्रेशर आपका वेरिएबल होगा बिकॉज जो गैस है, गैस डिफरेंट है आपकी, DRT. ठीक है. तो डेंसिटी सेम है, गैस कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू पूरी कांस्टेंट हो गई. सो हियर वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर मास इनटू प्रेशर इट रिमेन कांस्टेंट एट सेम डेंसिटी एंड सेम टेम्परेचर. अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो M1P1 इज इक्वल टू M2P2. ठीक है. अंडर इनिशियल और फाइनल कंडीशन देयर प्रोडक्ट ऑल्सो रिमेन सेम. तो यहाँ पे हम जो M1P1 मोलिकुलर मास एंड प्रेशर, ये तो हम गैसियस ऑक्साइड का कंसिडर कर लेंगे. एंड जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन हम नाइट्रोजन के लिए कंसिडर कर लेंगे. ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार प्रेशर. P1 गिवन है 2 बार. when its density remains same as that of नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होगा, हमें पता है कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन बिकम 28. एलिमेंट का 14 ग्राम है. तो यहाँ पे 2 एटम्स आपस में ज्वाइन किए हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा 28. प्रेशर कितना गिवन है नाइट्रोजन का 5 बार. तो मोलिकुलर मास कितना आ गया, that become 70. ठीक है. molecular mass of gaseous oxide become 70. is it clear? So from ideal gas equation we can easily calculate density as well as molecular mass. just आपको जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए और
उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 34.05 ml of phosphorus vapor weigh 0.0625 gram at 546 degree Celsius and 1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? ठीक है, वॉल्यूम गिवन है फॉस्फोरस का, मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। तो जब आपको वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर, प्रेशर, सारी कंडीशंस गिवन है, देन वी अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन. Ideal gas equation is PV is equal to nRT. So from ideal gas equation we can calculate molecular mass. We know that number of moles is equal to given mass by मोलर मास. तो यहाँ से आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मोलर मास कितना आ जाएगा, गिवन मास इंटू R बाय टी, P इंटू V. मास कितना गिवन है गैस का, मास इज 0.0625 ग्राम. गैस कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है, यूनिट प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज इन बार. ठीक है, वॉल्यूम जब मिलीलीटर में होगा, प्रेशर बार में होगा, तो हम आर को कंसीडर करके चलेंगे. देन आर इज टेकन एज 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन. टेम्परेचर आपका है 546 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273 केल्विन और हो जाएगा, प्लस 273 करेंगे, देन इट बिकम 819 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 34.05 ml. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना आर की ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जब प्रेशर की यूनिट बार में होगी और वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा. ठीक है, आर की ऐसा कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो व्हेन प्रेशर इज टेकन एज बार, ठीक है, जब हम प्रेशर को बार में कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे भी टेक आर एज 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन. तो यहाँ पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है. और यहाँ पे देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं हमेशा यूनिट साथ में मेंशन करो कि अगर बाय चांस यूनिट आपकी डिफरेंट भी आ रही है तो आपको पता चल जाए. यहाँ पे हमारे आर की यूनिट है डेसीमीटर क्यूब में और गिवन वॉल्यूम है ml में. दोनों यूनिट डिफरेंट आ रही है तो आपकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, तभी आपका न्यूमेरिकल करेक्ट होगा. अगर आप डिफरेंट यूनिट से कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट्स आपकी डिफरेंट है. डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वैल्यू ही कंसीडर करके चलेंगे. तो यहाँ से वॉल्यूम मिलीलीटर में है, कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू डेसीमीटर क्यूब. नाउ वी नो दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब. तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, मोलिकुलर मास बिकम 125 ग्राम पर मोल. इज इट क्लियर? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना था. प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास. मास भी गिवन है, तो वी नो डैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. तो ये वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करके जस्ट कैलकुलेशन की, एंड देन वी कैन गेट molecular mass of gas. Is it clear? So I hope you understood the numericals based upon gas laws and ideal gas equation very well. Just simple numericals है, formula based numerical है, just calculation की practice करनी है आपको. And I suggest कि जब भी आप calculation करें तो कभी भी calculator का use मत करो, क्योंकि CBSE एग्जाम्स में और इवन आपके competition एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हो तो आप एग्जाम में कभी भी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, और चांसेस ये हैं कि आप कैलकुलेशन गलत ही करके आओगे अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके करते हो प्रैक्टिस. ठीक है, तो अवॉइड कैलकुलेटर. इज इट क्लियर? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.